Welcome class. The topic of today's session is zero order reaction. We know that zero order reactions are those reactions in which the rate of reaction does not depend on any concentration term of the reactant. आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड नहीं करता है. So in such type of reactions, rate of reaction does not depend on concentration and also time. Then rate of reaction is directly proportional to the zero power of the concentrations of the reactants. Say let us consider a zero order reaction. A changes to B. A here is reactant and B is product. That at t is equal to 0 means initial concentration is A naught moles per liter, and after time t, let x be the fraction dissociated and converts into product. So it is A naught minus x, and this is equal to x. So let At, this is the final concentration of the reactant, and final concentration of the reactant will be initial concentration minus the fraction dissociated. This is A naught minus x. And Bt is the final concentration of the product, and this is equal to x. Now, the rate law for zero order reactions is R is equal to K, A to the power 0, means it is the zero power of the concentration of the reactant. So this is equal to R is equal to K. So in zero order reactions, rate constant is equal to rate of reaction. Now see the integrated rate expression for zero order reaction. See, rate is equal to, in terms of reactant, rate may be written as change in concentration of A upon dt, this minus d upon dt, and this is equal to K, this one. Now, change in concentration of A, this is final concentration minus initial concentration. So final concentration is At, this is A naught minus x, say A naught minus x, and initial concentration is A naught, so A naught minus x minus A naught. So A naught cancel out, so it becomes dx upon dt. So dx upon dt, this is equal to K, और dx upon dt, और dx is equal to k dt, dt को इधर लाइए, dx is equal to k dt. Now integrate this equation, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको dx को 0 to x लिमिट लगाते हैं यहाँ पे 0 to x, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज a naught to at, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सो a naught to at, एंड k कांस्टेंट है बाहर रखिए, एंड दिस इज 0 to t, dt को इंटीग्रेट किया हमने, and we know that the integration of dx, this is equal to x, and dt is equal to t, so it becomes x is equal to kt. So x here is the fraction dissociated, so x is equal to kt, and from here we can calculate the k, that is rate constant, this is equal to x upon t. Now concentration of reactant, this is equal to at, this is equal to a naught minus x. ये अभी आपने पीछे देखा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू अभी आपको मिली क्या, के टी. सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ के टी, सो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. So this is the expression for zero order reaction. In terms of gaseous reactions, in gaseous reactions or in gaseous state, in place of molar concentration, we put here the partial pressures. So it is Pt, it is the final pressure. This is equal to initial pressure minus Kt. So this is the partial pressure of the reactant after time t. Or from this equation, we can calculate the rate constant for the zero order reaction. This is equal to A naught minus At upon T, means initial concentration minus final concentration upon T. So this is the integrated rate expression for zero order reaction. So these two equations are very very important, और इसी पे maximum आपके numericals based होते हैं zero order पे. Now concentration of product. अभी concentration of product आपने BT देखा था, ये क्या रहा था x, और x की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, KT. So BT is equal to KT. So this is the concentration of product. Now see the lifetime of the reaction. Lifetime of the reaction is the time in which 100% of the reaction gets completed. जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग किसी भी रिएक्शन का लाइफ टाइम कहते हैं. तो टी लाइफ टाइम पे क्या हो जाएगा, यानी टी 100% पे ए टी यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस जीरो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बिकम जीरो, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट हुआ, दिस इज इक्वल टू ए नॉट. इनको हम पुटअप करते हैं वैल्यूज़ में इस इक्वेशन के अंदर, तो याद है क्या, ए टी की जगह हमने जीरो पुटअप किया, एंड दिस ए नॉट माइनस के, और टी की जगह पुटअप किया हमने टी लाइफ टाइम. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट टी लाइफ टाइम दिस इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के. तो ये लाइफ टाइम में 100% रिएक्शन होने के लिए टी लाइफ टाइम क्या आ रहा है, दिस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, और इस पॉइंट पे इस पे न्यूमेरिकल बनेगा आपका. सो टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड. जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए जिस समय पे, उस समय को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं किसी भी रिएक्शन का. और हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन गेट कंज्यूम्ड, या फिर हम कहेंगे क्या, जब किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ कंज्यूम्ड हो जाए, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा. सो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि टी हाफ समय पे 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, यानी कि उसका रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का उसका हाफ हो जाए, यानी कि ए नॉट अपॉन टू, इतना कंज्यूम हो गया, हाफ कंज्यूम हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का. सो पुट दिस वैल्यूज, इन वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं इक्वेशन वन के अंदर. तो इक्वेशन वन के अंदर क्या आ जाएगा, ए टी की जगह पे पुटअप किया हम लोग, क्या ए टी की जगह पे हम लोग पुटअप किया ए नॉट अपॉन टू, दिस ए नॉट माइनस के, और टी की जगह पुटअप किया हम लोगों ने टी हाफ. सो यहाँ से आ जा रहा है क्या, के टी हाफ, दिस इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू,
और के टी हाफ दिस इज ए नॉट अपॉन टू, और यहाँ से हम लोगों ने टी हाफ निकाल लिया क्या, दिस इज ए नॉट अपॉन टू के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा आपको। और यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो रिएक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। राइट, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से जीरो स्टार्ट किया था इनिशियल, 50% रिएक्शन हुआ, फिर 100% रिएक्शन। तो 50% रिएक्शन यानी हाफ लाइफ पीरियड, ये टाइम पीरियड कितना रहा, ए नॉट अपॉन टू के। अगला 50% कितने में हो रहा है, ए नॉट अपॉन टू के, और पूरा हाफ, पूरा लाइफ टाइम दिख रहा है क्या, दिस इज ए नॉट अपॉन के। एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास एक जीरो रिएक्शन से 3 चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन इज आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो, और आर इज इक्वल टू के। इनिशियली अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ए नॉट ले रखा है, तो एट टाइम टी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी बिकम्स ए नॉट माइनस थ्री एक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल ले रखा है, तो ए नॉट माइनस थ्री एक्स, एंड दिस बिकम्स थ्री एक्स। फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा थ्री एक्स, दिस इज इक्वल टू बी टी। अब हम रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या, दिस इज माइनस वन अपॉन थ्री, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, ए नॉट माइनस एक्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा है के, और डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट किया, आ रहा है हमारे पास रिलेशन एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या जाएगा, एक्स की जगह पे के टी पुट अप करो, तो याद आ रहा है कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस थ्री के टी। तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मेंशन होंगे, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। यानी एक अच्छा तरीका देखिए, नोट में बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, के रिएक्टेंट दिस इज इक्वल टू के रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसमें रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में ये जो के है, ये हमारा क्या है, दिस वन के दिस इज इक्वल टू के इंटू थ्री। के यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थ्री है, तो इट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के ए, ये था हमारा रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट। अब के की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, थ्री के बराबर, के इज इक्वल टू थ्री के, तो इस यहाँ पे पुट अप किया तो सीधा ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। ईजी है, तो ये लर्न करने के लिए मैंने आपको बता दिया एक ट्रिक, सो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसका टी हाफ, और टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ इज ए नॉट अपॉन टू के, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया, और के की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास थ्री के, तो ये आ गया हमारा थ्री के। अब देखिए एक जनरल एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ याद करने के लिए। देखिए ए टी की वैल्यू, अगर इफ़ वी हैव एन मोल्स ऑफ ए दैट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, लेट दिस बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें एन मोल्स ऑफ ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ए टी की वैल्यू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस एन के टी, सिंपली आपको एन निकालना है, अभी आपने देखा पीछे। और टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन एन टू के, यहाँ पे देखिए एन टू के, ये आ रहा है एन, एन की जगह पे थ्री पुटअप कर रहे हैं, और टू के हमारा पहले से ही था, सो इट इज एन टू के। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।